Good morning everyone. Today we are going to study chapter 2, structure of atom. In this chapter we will study about the discovery of electron, proton and neutron and their characteristics. Then we will study about the Thomson and Rutherford and Bohr's atomic model and the important feature of the quantum mechanical model of atom and the nature of electromagnetic radiation and Planck's quantum theory, the photoelectric effect and describe features of atomic spectra. And we will also study about the de Broglie relation and Heisenberg uncertainty principle, and we will define an atomic orbital in terms of quantum numbers, and then FPO principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity, and we will write the electronic configuration of atoms. The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure of atom of these elements. जितने भी chemicals available हैं, तो जो difference है उनके element में, उसे हम किस तरीके से define कर सकते हैं उनके internal structures के through. Internal structure कौन सा है? जो atoms उनके अंदर available है उनके structure के through हम सारे elements की जो differences है उस चीज़ को बता सकते हैं. The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. Atoms के बारे में कब हमें पता चला था? 400 BC से पहले, जब इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर ने हमें बताया था कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि मैटर किससे बने होते हैं? एटम से. According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further divisible. उनके अकॉर्डिंग मैटर को आप डिविजिबल कर सकते हो. कब तक डिवाइड कर सकते हो? जब तक कि आप एटम तक ना पहुंच जाओ, और एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncut, able or non-divisible. जो एटम वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड एटोमियो से, जिसका मीनिंग होता है जिसे आप और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो. These earlier ideas were more speculations and there were no way to test them experimentally. पहले आप इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते थे. These ideas remained dormant for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century. तो इतने टाइम से ये सारे आइडियाज़ डॉर्मेंट थे, यानी कि रखे हुए थे एक जगह, इनके ऊपर कोई स्टडी नहीं हो रही थी. बट 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इनके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया. The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808. तो जो ये एटॉमिक थ्योरी थी इसके ऊपर जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले स्टडी किया, जो क्या थे? एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे 1808 में. ही कॉल्ड हिज थ्योरी कॉल्ड डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उन्हीं के नेम पे इस थ्योरी को डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम दिया गया. रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो उन्होंने क्या बोला कि एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का. Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully. तो जितने भी हमने law of matter पढ़े थे अभी लास्ट चैप्टर में, तो वो सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उनकी थ्योरी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with a silk or fur, get electrically charged. तो उनकी थ्योरी से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि जब भी हम ग्लास को या एबोनाइट को रब करते हैं सिल्क से तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हो जाता है. तो डॉल्टन की थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती है. In this unit, we start with the experimental observation made by scientists toward the end of 19th and beginning of 20th century. तो इस चैप्टर में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? जो 19th सेंचुरी के एंड तक और 21st सेंचुरी के बिगनिंग तक जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे एटम्स के ऊपर, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है. These establish that atom are made of सब एटॉमिक पार्टिकल. और उन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि एटम किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है. दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है.
कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। तो जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी है साइंटिस्ट की, कि ये जो एटम है वो किस चीज़ से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। So first topic is discovery of subatomic particle. An insight into the structure of atom was obtained from the experiment on electrical discharge through gases. Before we discuss the result, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. ओके तो इस थ्योरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है एटम का वो हम एक्सपेरिमेंटली पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। जो बेसिक थ्योरी है चार्ज को लेकर हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्चुअल में क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो उससे पहले हमें इस थ्योरी को माइंड में रखना है कि लाइक चार्जेस तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड प्लस माइनस क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे थे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes which result in the liberation and deposition of matter at the electrodes. तो 1830 में माइकल फेराडे ने क्या बोला कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से, तो केमिकल रिएक्शंस हैपन होती है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ओके, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर केमिकल रिएक्शन अकर होती है विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लिबरेशन भी होता है एंड डिपोजिशन भी होता है किसका, मैटर का। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉ विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। तो उनके जो कुछ लॉ थे वो आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। दीज रिजल्ट सजेस्टेड द पर्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्चुअल में उनका लॉ क्या बताता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक नेचर है, दैट मीन्स कि जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। ओके, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड है उसमें से अगर आपने, जैसे NaCl है, तो आपने उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी है तो आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपके एलिमेंट्स आके इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, दिस वाज द लॉ ऑफ माइकल फेराडे। In mid-1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. तो 1850 के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे फैराडे ने स्टडी स्टार्ट करी थी किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज के ऊपर, कि कैसे एक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको बोला गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने जनरेट किया था, जो इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगाए थे, वो पूरे इक्विपमेंट्स को मिला के बोला गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। यू कैन सी इट इन फिगर 2.1. It is depicted a cathode ray tube is made of a glass containing two thin pieces of metal. तो आप उसके अंदर फिगर के अंदर देख सकते हो कि जो कैथोड रे ट्यूब है वो किससे बनी होती है, ग्लास से बनी होती है, जो जिसमें दो पीसेस लगे होते हैं मेटल के, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। सील्ड इन इट, उस ग्लास ट्यूब के अंदर उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। द इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट अ वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है उसे आप कैसे देख सकते हैं, ग्लास के अंदर एट अ वेरी लो प्रेशर, जब आप उसके अंदर बहुत लो प्रेशर को जनरेट करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को जनरेट करेंगे। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। और जो प्रेशर है इवैक्यूएशन के थ्रू आप ग्लास ट्यूब के अंदर उसमें प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज glass tubes, when sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode to the positive electrode. These were called cathode ray और cathode ray particles. तो जब आप उसमें वोल्टेज जनरेट कर देंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसकी वजह से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग जाएंगे कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ, तो आप इन्हें बोल सकते हैं कैथोड रेस और कैथोड रे पार्टिकल्स। यानी कि जो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा ग्लास ट्यूब के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे, उस चीज़ को आप बोल सकते हैं कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स।
The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. Phosphorescent material zinc sulfide. तो जो फ्लो ऑफ करंट है कैथोड से एनोड का, उसे आपको अगर फर्दर चेक करना है तो आपको एक होल बनाना पड़ेगा किसके अंदर, एनोड के ऊपर, जिसके अंदर एक मटेरियल जिंक सल्फाइड को आपको प्लेस करना पड़ेगा. व्हेन दीस रे आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग. तो जब ये रेज जनरेट होती हैं एनोड से तो जिंक को स्ट्राइक करते हुए जाती हैं, जिससे एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होता है कोटिंग के ऊपर. यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. ये क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है. आप इसमें देख सकते हैं कैथोड है, एनोड है, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है और एक हाई वोल्टेज के लिए सप्लाई दी हुई है. एनोड यू नो प्लस होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. और एनोड के ऊपर जिंक सल्फाइड की हमने क्या कर रखी है, फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्लोरोसेंट कोटिंग कर रखी है. ओके, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो. तो इसका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला जो माइकल फेराडे ने परफॉर्म किया था, उसके अकॉर्डिंग द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड. तो कैथोड रे क्या होता है, एंड कैथोड से स्टार्ट होती है एंड एनोड की तरफ मूव करती है. These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material which glow when hit by them. ये रेज आपको विजिबल दिखाई नहीं देगी, ओके, बट आप उसे ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, जब वो जो हमने फ्लूसेंट या जो मेटल की कोटिंग कर रखी थी उसके ऊपर जो शाइनिंग निकलती है उससे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लूसेंट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लूसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल. तो एग्जाम्पल के लिए टेलीविजन जो लगे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या लगी होती है, पिक्चर ट्यूब जो होती है वो क्या है, कैथोड रे ट्यूब्स है. एंड जो उसका रिजल्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर्स बनती हैं वो एक्चुअल में क्या है, जो कोटिंग कर रखी होती है उसके ऊपर बनने वाली शाइनिंग के थ्रू बनती हैं. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी. कौन सी रेज, कैथोड रेज जो हमने पढ़ी थी अभी, कैथोड और एनोड रेज जो कैथोड से होकर चलती है एनोड की तरफ. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड the behavior of cathode ray are similar to that expected from negative charge particle. और जब इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो जो कैथोड रे का बिहेवियर है वो कैसे होगा, एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ओके, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैथोड रे है वो एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन है. The characteristics of cathode ray do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms. तो जितने भी cathode rays होती हैं वो सारी मटेरियल पे बेस्ड नहीं होती है. कोई सा भी मटेरियल आप ले सकते हो, कोई सी भी गैस आप ले सकते हो, वो सारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन 1897 ब्रिटिश फिजिक्स जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो जे थॉमसन थे 1897 में उन्होंने क्या मेजर किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर किया एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर किया और इन दोनों का रेशियो मेजर करा. बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. उन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया ये जो रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए, एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया. व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट from their path and hit the cathode ray tube at point A. तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेविएट करते हैं अपने पाथ से, दैट इज कैथोड रे ट्यूब के अंदर पॉइंट ए से. ये आपको फिगर 2.2 के अंदर आप देख सकते हो. लेट मी शो यू फिगर 2.2. दिस इज, ये क्या है आपका जो एपरेटस था जो मास रेशियो निकालने के लिए हमने क्या बोला कि पॉइंट ए से जो
चार्ज निकलता है, दैट मीन्स कि कैथोड रे से जो चार्ज निकलता है वो सीधे कहाँ पे जाता है, पॉइंट ए के ऊपर। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट शो कर रखे हैं, ए बी एंड सी। ओके, लास्ट में आपका कैथोड है, देन उसके आगे क्या है, आपका एनोड है, और उसके पीछे एक फ्लूइड मटेरियल की कोटिंग होती है जिसपे चार्जेस क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एंड देन उससे पिक्चर जनरेट होती है स्क्रीन के ऊपर, फ्लूसेंट स्क्रीन के ऊपर। So similarly, when only magnetic field is applied, electron strike the cathode ray tube at point C. तो सेम फिगर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो चार्ज कहाँ पे जनरेट हुए, पॉइंट ए के ऊपर, और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज कहाँ जनरेट होंगे, पॉइंट सी के ऊपर। By carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B. सो व्हेन जब दोनों इक्वल हो, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल हो, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो, तो चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा, पॉइंट बी के ऊपर। ओके, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर। So Thomson argued that the amount of deviation of particle from their path in the presence of electrical or magnetic field depend upon the magnitude of the negative charge on the particle. Greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection. तो इन्होंने क्या बोला थॉमसन ने, कि जो डेविएशन है, यानी कि पॉइंट ए हमें मिल रहा है, पॉइंट बी हमें मिल रहा है, पॉइंट सी हमें मिल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चार्ज के ऊपर। ओके, जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्लाई किया था तो हमें जो डेविएशन था वो कहाँ पे मिला, पॉइंट ए के ऊपर। जब हमने सिर्फ मैग्नेटिक चार्ज दिया था तो डेविएशन कहाँ मिला, पॉइंट सी के ऊपर। एंड जब दोनों बैलेंस थे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चार्ज, तो हमें डेविएशन कहाँ मिला, पॉइंट सी के ऊपर। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग the magnitude of the negative charge on the particle, greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electrical or magnetic field. जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज का, वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, कितना ज़्यादा आप उसको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ओके, द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल, ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। तो आप ये बोल सकते हो कि जितने लाइटर पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो एंड द थर्ड थिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का उसके ओरिजिनल पाथ से, यानी कि पॉइंट ए बन रहा है, पॉइंट सी बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, आपने जो वोल्टेज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज़्यादा आपने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया है उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, डेविएशन मिल रहा है। By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by electron on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon mc as, तो जो उन्होंने मेजरमेंट किया, जो डिफ्लेक्शन था पॉइंट ए की तरफ जाना, पॉइंट सी की तरफ जाना और पॉइंट बी की तरफ जाना। इस एक्सपेरिमेंट में सिंपल सा थिंग है, आपने एक एपरेटस को सेटअप कर लिया, कैथोड रे ट्यूब को। ठीक है, फर्स्ट आपने कैथोड लगाया, देन आपने एनोड लगाया, देन आपने एक फ्लूसेंट मटेरियल का कोटिंग किया, एंड देन फिर जब उसके ऊपर पिक्चर जनरेट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे, तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी पिक्चर दिखेगी। ओके, देन आपको क्या देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट किया उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, ए पॉइंट की तरफ। जब आपने उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, सी पॉइंट की तरफ। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्विवेलेंट था तो आपके पॉइंट्स कहाँ जा रहे, स्ट्रेट लाइन में, दैट इज पॉइंट बी की तरफ। तो ये चीज़ क्या बताता है कि जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो चीज़ डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगी। ओके, तो इसी के बेसिस पे थॉमसन ने ई अपॉन एम सी का वैल्यू निकाला था। दैट मीन्स कि उन्होंने रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का विद मास ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, वो क्या है, ई अपॉन एम ई इक्वल्स टू 1.758820 इंटू 10⁻11 कुलाम kg पर kg। यहाँ पे सी क्या है, कुलाम, वेयर एम सी
is the me is the mass of the electron in kg and e is the magnitude of the charge. me क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का kg के अंदर, एंड e क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इसे हम किससे मेजर करते हैं, कूलाम से. ओके, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई. तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, माइनस ई है. नेक्स्ट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. हमने ई अपॉन एम ई निकाल लिया है. ओके, रेशियो निकाल लिया है. अब हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है. आर ए मिलिकन डिवाइस अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. आर ए मिलिकन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जिसे बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है इसे फाइंड आउट करने के लिए आर ए मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. He found the charge on the electron to be minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The present accepted value of electrical charge is minus 1.602176 into 10 to the power minus 19 coulomb. और अभी जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं वो इसके बिल्कुल इक्वलेंट है, माइनस 1.602176 into 10 to the power minus 19 coulomb. The mass of the electron was determined by combining these result with Thomson value. तो जब आपको चार्ज की वैल्यू मालूम है इलेक्ट्रॉन की और आपके पास E अपॉन एम ई का रेशियो है, तो आप इजिली एम ई फाइंड आउट कर सकते हो. सो E अपॉन एम ई की वैल्यू पुट कर दी है, E के साथ रेशियो निकालिए, देन हमारे पास एम ई की वैल्यू आ गई, दैट इज 9.1094 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एम ई कितना होता है, यानी कि मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. नेक्स्ट इज डिस्कवरिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. चार्ज पार्टिकल को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को फाइंड आउट कर लिया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू. उसका मास हमें पता है, उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल हमें पता है कि क्या होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एंड हमें ई अपॉन एम ई का रेशियो भी मालूम है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positive charge particle. हमने पहले कैथोड रे के बारे में पढ़ा था, अब सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, कैनल रेज के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो. इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू हमने पढ़ी थी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक अपोजिट जो एनोड होता है उसकी तरफ मूव करती हैं. ओके, क्योंकि हमें पता है लाइक पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, एंड वो किससे डिफ्लेक्ट होती है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे डिफ्लेक्शन उसके अंदर शो करता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैनल रेज, जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की. फर्स्ट इज अनलाइक कैथोड रे, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब. दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन. ओके, तो जैसे हमने नेगेटिव चार्ज निकाला था उसी की तरह पॉजिटिव चार्ज का जो मास है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो गैस आपने उसके अंदर फिल करी है, नेचर ऑफ गैस उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन. Second is the charge to mass ratio of the particle depend upon the gas from which these originate. और charge to mass ratio भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जो उसके अंदर गैस फिल्ड है. Some of the positive charge particle carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ. The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron or cathode rays. और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton.
सो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था पॉजिटिव आयन था, और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था वो कहाँ से मिला हमें, हाइड्रोजन गैस से, जिसे बोला गया प्रोटॉन. These positive charge particle was characterized in 1919. Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom. स्टार्टिंग में तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया गया था, देन उसके बाद न्यूट्रल पार्टिकल को भी डिस्कवर किया गया. ये बताया गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अलावा एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट रहता है. These particles were discovered by Chadwick by bombarding a thin sheet of beryllium by a alpha particle. तो जो न्यूट्रल पार्टिकल था उसकी डिस्कवरी किसने करी, चैडविक ने. कैसे करी, एक थिन शीट के ऊपर बेरिलियम की उन्होंने बॉम्बार्डिंग करी, किस चीज़ की, अल्फा पार्टिकल्स की. देन उन्होंने फाइंड आउट किया न्यूट्रल पार्टिकल. When electrically neutral particle having a mass slightly greater than that of proton were emitted. तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल था जिसका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा था, उसे उन्होंने एमिट किया. ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन. तो जो बॉम्बार्डमेंट हुआ था उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जिसका मास जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रॉन. The important properties of these fundamental particle are given in table 2.1. और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं न्यूट्रॉन की, टेबल 2.1 के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टीज देखोगे, प्रोटॉन की भी देखोगे एंड न्यूट्रॉन की भी देखोगे. सो हेयर इज टेबल 2.1. यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो. इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, प्रोटॉन का सिंबल होता है पी एंड न्यूट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल एन. ये तीनों स्मॉल के अंदर है. इनका चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसका प्लस 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, दैट मीन्स कि इसका एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, 0. रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 एंड न्यूट्रॉन 0. मास हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास पर किलोग्राम है 9.10938 इंटू 10⁻31 kg. प्रोटॉन के ऊपर मास है 1.67262216 इंटू 10⁻27. एंड आपको मालूम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल इक्वलेंट होता है, तो न्यूट्रॉन का भी मास है 1.674927 इंटू 10⁻27 kg. मास पर यूनिट हम देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन के ऊपर है 0.00054 यूनिट. ओके. प्रोटॉन के ऊपर मास पर यूनिट है 1.00727 यूनिट एंड न्यूट्रॉन के ऊपर मास पर यूनिट है, पहले वाला मास था केजी के अंदर, ये यूनिट के अंदर है 1.00867. अप्रॉक्स मास हम देख लेते हैं.